So, Vivek College Business has decided to organize a webinar, role of social media marketing in business. We are very fortunate as today we have with us an eminent professor, Dr. Jaspreet Kaur from Pearl Academy, New Delhi, to enlighten us the topic. Dr. Jaspreet, please take the session in your hand. Ma'am, please proceed. Okay, good morning, everyone. Am I audible? Good morning, ma'am. Yeah, ma'am. Am I? Yes. Yeah, am I audible? Okay, so I'm sharing my PPT. Okay, and at any point, if I'm not audible due to connectivity, please do let me know. I think Sarvesh sir will let me know, and then I can stop and start again. Definitely, ma'am. Okay, I'm sharing my PPT. Sir, you have to enable screen sharing, Sarvesh sir. Yeah, ma'am. Yes. Done, ma'am. Okay, now it's enabled. It's enabled. Yeah. Can everybody see the slide? Yes, ma'am. Sarvesh sir, you'll have to help me here. Can you see the slide? Okay. Yes, ma'am. Yes. Okay, let me start with good morning, everyone. Yeah, good morning, everyone. I think Sarvesh sir has given a very good introduction of mine, and I am honored to be to having been called as a guest speaker over here. I will today speak, as Sarvesh sir said, yes, digital marketing is the call of the day because another 6 months we are going to be online, period. All classes online, all webinars online, whatever business and office can happen, everything online. But even post-COVID, this online thing is not going to go. So now let me start with my topic for today, which is digital marketing. Gone are the days जब एक दुकान होती थी, वहां एक मार्केटर बैठा होता था रिटेल शॉप में, लोग खरीदने आते थे, मार्केटर कहता था अच्छा ये दाम है, ये लो, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ. Those days are gone. Those days are gone. Today मार्केटर बैठा रहता है और ग्राहक नहीं आता. The marketer keeps on sitting in retail shop and there are no consumers and there are many marketers. So how do I reach them? मैं केवल रिटेल से वहां नहीं पहुंच सकती. Just through retail I can't reach them. So that is the reason why I said let me reach them online. ठीक है? ऑनलाइन का फेम ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि सबने स्मार्टफोन खरीद लिए. सो जैसे ही स्मार्टफोन खरीद लिए, आपका पूरा इंटरनेट मोबाइल पे आ गया. Okay, so that is when online really got famous. Now, what is digital marketing? Digital marketing. Let me define it for you. Marketing is anything that you do online with the help of internet. Period. Whether that online or internet is on your mobile. My voice is breaking. Whether it is on your desktop, whether it is on your laptop, whether it is on your tablet, anything. Ma'am, I think there is connection problem. There is some technical problem. Our guests will be here within a minute. So all the participants requested to have patience. Yeah. Our guest is with us. Yeah, hi, I'm back. Yeah. I'm sharing the screen. Sorry for this thing. There was some connectivity problem. I'm now on the mobile hotspot. Okay, so I was talking about digital marketing. I hope I'm audible now. I was talking about digital marketing.
एंड दीज आर द थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. अब होता क्या है, जनरली जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ या किसी लेमैन से बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वो कहते हैं मैडम सोशल मीडिया है. मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे ही बात करते हैं, कहते हैं मैडम सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग है. और मैं उनको बताती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग केवल और केवल सोशल मीडिया नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि वो बहुत सारी चीजें कौन सी हैं. इफ यू सी ऑन द स्लाइड दीज 7-8 थिंग्स विच आर रिटन, ऑल दिस इज डिजिटल मार्केटिंग. और इनमें से कई का तो आपने नाम भी नहीं सुना हो, और मैं आज आपको वो एक्सप्लेन करूंगी. So let me go quickly to there are many, if you see on the slide there are many things. I'll explain each of them. Branding yani marketing online, social media, email marketing, content marketing. I'll come to that. मैं एक slide लेके आऊंगी जिसमें आपको content marketing का importance दिखेगी. Video production, search engine optimization. I'll explain all these terms. Web designing, designing my own website so that I can sell the product. App development, very, very, very crucial for mobile marketing. Very crucial for mobile marketing. App आजकल हर कंपनी का होना compulsory हो गया है. And SEM. So I'm coming to the first thing. Here I've taken only social media marketing. मैं आपको सिर्फ एक चीज पूरे 1 hour में पढ़ाऊंगी, लेकिन उसमें आपको सारे components दिखेंगे. Okay, so today what I'm going to take up is, I'm not taking email marketing, I'm not taking web designing, I'm not taking app, I'm taking up social media, and I'll tell you the power of selling on social media. Social media marketing, or very prominently we call it SMM, social media marketing, is a form of sharing content and selling your brand. It's very simple. Share content, sell your brand. Now in this media, in this जैसे कहते हैं कि एक हम कहते हैं शोशे की दुनिया, शो ऑफ की दुनिया है ये, ठीक है. सोशल मीडिया एक शो ऑफ की दुनिया है. इसमें मेरा प्रोडक्ट इतना महत्व नहीं रखता, मेरा प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मेरा कंटेंट. ठीक है, यहां पर मैं अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते, हम उसको फील नहीं करवा सकते, हम उसको ये नहीं बता सकते ये लैपटॉप ले लो इसमें ये फीचर्स हैं, हम उसको ये नहीं बता सकते कि होटल में मेरे ये सर्विसेज हैं. आप सिर्फ केवल और केवल उसको कंटेंट दिखा सकते हो, पिक्चर्स दिखा सकते हो, वीडियो दिखा सकते हो, लोगों के रिव्यू दिखा सकते हो, ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले. ठीक है, ये सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग, दीज आर ऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग वेबसाइट्स. Many of them I think you know. You have to also understand कि हालांकि ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, यहाँ भी हम टारगेटिंग करते हैं, यहाँ भी हम टारगेटिंग करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम टारगेटिंग सिर्फ फिजिकल रिटेल में करते हैं. तो अगर मैं यहाँ एक छोटा सा टारगेट सेगमेंट बनाऊं तो फेसबुक पे आजकल केवल और केवल मेरी उम्र के लोग हैं, 40 and above. All people of 40 and above you'll find on Facebook. But the youngsters, if you want, youngsters, millennials, you will find them only and only on Instagram. I repeat, if you want to find youngsters, you will only and only find it on Instagram. Okay? Can I move forward? And Sarvesh sir, एक बार बता दीजिए, track तो नहीं कर रही ना? Voice No. Yes. हाँ जी. Now let me go to my next thing. I can see some chats coming. But because I'm in a flow of a topic, I will answer all questions at 12 o'clock. Each and every question. Okay? Chaliye. Let us see what are the social media platforms. So you have a Facebook, you have Google Plus, you have Pinterest. Pinterest mostly pictures के लिए होता है, आप written content नहीं डाल सकते. You have Twitter. Okay? आजकल कहते हैं कि क्लास में भी अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती तो शाम तक वो उसका हैशटैग बना के ट्विटर पे डाल देते हैं, हैशटैग AC not working in Pearl Academy, very hot. मतलब ये एक ऐसी कॉमन चीज हो गई कि हर दिन का एपिसोड आप ट्विटर पे दे सकते हो. LinkedIn only meant for professional people. Rather, Sarvesh sir and all faculties,
are also, we all are connected over LinkedIn. LinkedIn का फायदा ये होता है कि if I have taken a seminar on say digital marketing, I put it up on LinkedIn and then I get more offers from more colleges. Okay, बहुत ही it's a very very important strong medium for professionals. YouTube, I'll come to YouTube, and I have not added TikTok. मुझे TikTok बहुत ज़्यादा professional नहीं लगता, but TikTok is coming as a very big platform. Why I have not added TikTok over here is because voice is not coming. I think there is some technical problem, some internet problem basically. Yes, I think that there is some technical problem. Internet connection is not properly work. We are waiting for our distinguished guest speaker, Dr. Jaspreet Kaur. She will join us very soon. सीरीज वाले और पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। अभिषेक भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड कुमार सत्यवेदा कॉलेज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वेबिनार में। हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं वो अपना इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपके सामने Q&A टैब आ रहा होगा, उस Q&A टैब में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। okay, connecting again. Yeah. Yes. Sorry, connecting again, some major problem. Okay, now you can see the slide. Everybody can see. Yeah. This is order. Now I was explaining that these are the platforms. I have not added TikTok. I have not added this person adds me to the group, I walk out. It is not a very effective, it's not a very effective platform. Okay, now let me come to social media platforms which are very effective. So Instagram is very effective. 80% of Instagram's users are US based consumers. So if you want to sell something to US, where should you go? Out of all the 6, where should you go? You should go to Instagram. Okay, here I would like to give you an example. There was one of my students, मेरा एक student था, उसने क्या किया, उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया। उसने प्रोडक्ट बनाया हैंडीकैप लोगों के लिए, उनको स्पेशली एबल्ड भी हम कहते हैं। उसने स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक प्रोडक्ट बनाया। उसने एक साड़ी बनाई और उसने कहा कि एक ऐसी लेडी जिसका हाथ नहीं हो या पैर नहीं हो, वो बैठे बैठे वो साड़ी पहन लेगी। उसने एक बड़ी कमाल की चीज बनाई। हमने उसको बोला ये बहुत अच्छी चीज तुमने बनाई, इसको मार्केट करो। 2018 की बात है, आज 2 साल बाद वो मेरे पास आया, बोला मैम मैं अपना सारा बेस यूएस शिफ्ट कर रहा हूं। हमने कहा क्यों शिफ्ट कर रहे हो? बोला मैम मेरा टारगेट सेगमेंट हिंदुस्तान नहीं है। जब हमने उससे पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला, तो उसने कहा मैम 80% जो मेरे लाइक्स आते हैं इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स आते हैं वो यूएस कंज्यूमर से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए, उसने चीज बनाई थी इंडिया के लिए और अब वो यूएस में अपना बेस शिफ्ट कर चुका है। हाउ डिड ही कम टू नो? थ्रू सोशल मीडिया। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग,
I'll just leave this. Now, here I'll give you true examples. सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें, मैं आपको हर चीज के लिए एक ब्रांड का एग्जांपल दूंगी. सोशल मीडिया कंटेंट प्लानिंग, और उसके लिए मैं बार बार हर पॉइंट के लिए एक स्लाइड मैंने बनाई है. तो मैंने सोशल मीडिया कंटेंट प्लानिंग के लिए एक स्लाइड बनाई है, पोस्ट रेगुलरली के लिए बनाई है, ब्रांड इमेज के लिए बनाई है. तो मैं वापस उस स्लाइड पे जाऊंगी और वापस यहाँ आऊंगी. ठीक है, पहला पॉइंट, सोशल मीडिया कंटेंट प्लानिंग. आप क्या कंटेंट डालें और कौन सा कीवर्ड डालें ताकि मेरी वेबसाइट सबसे पहले खुल जाए. तो आई एम सेइंग कि मैं ऐसा कौन सा कीवर्ड डालूं कि लिंक्डइन पे डॉक्टर जसप्रीत कौर सबसे ऊपर दिख जाए. मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ, और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप में से कितने लोग इसको जानते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं ये कौन है? सर्वेश सर, आप जानते हैं ये कौन है? आप नहीं जानते? अच्छा, ऑडियंस जानती है? चैट पे देखूं मैं जरा, लोग जानते हैं नहीं जानते? आसिम सर, सब जानते हैं. अच्छा, आसिम, वेरी गुड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन हिज स्टोरी. सर्वेश सर, आप भी सुनिएगा. इसकी ये है कि इसको बिग बॉस के 4 महीने से पहले कोई नहीं जानता था. ये साहब बिग बॉस में आए, ही वाज अ कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस. एंड जब ये बिग बॉस में आए तो हमने सोचा यार, मतलब बिग बॉस में कैसे कैसे लोग आ जाते हैं. एक सिद्धार्थ शुक्ला जी थे, रश्मि देसाई थी, वो तो नॉन थे, वो लोग तो टीवी जगत के नामी लोग थे. लेकिन जब ये महाशय आया, हमने कहा अरे यार ये कौन है, हमने तो कभी देखा ही नहीं इसको. आप बिलीव करिए, इस वक्त, एंड इट्स अ चैलेंज टू ऑल पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, इस वक्त इंस्टाग्राम पे जाइए और आसिम वर्ड टाइप करिए. दुनिया में बहुत आसिम है, लेकिन सबसे पहले आपको इनका पेज खुलेगा. दिस इज द पावर ऑफ कीवर्ड एंड कंटेंट. मैं फिर अपनी स्लाइड पे वापस जा रही हूँ. सोशल मीडिया कंटेंट एंड पोस्टिंग रेगुलरली, ये एक ऐसी केस स्टडी है जिन्होंने 4 महीने बिग बॉस में बैठे और 4 महीने तक हर रोज बाहर एक पोस्ट आता रहा. आप बिलीव करेंगे? एंड बाय द वे, दोज हु आर न्यू टू दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू, ये सारे पोस्ट्स ये लोग नहीं डालते हैं. ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है वो द पुअर चैप सुशांत राजपूत हु एक्सपायर्ड 2 days बिफोर, उनका चल रहा है. और उनका एक पोस्ट है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, जो उन्होंने अपनी मदर के साथ एक पोस्ट कुछ दिन पहले डाला था. ठीक है, बट देखिए, सोशल मीडिया पे जितने पोस्ट डाले जाते हैं, जरूरी नहीं है वो सेलिब्रिटी खुद बैठ के डाल रहा हो. ठीक है, उसके लिए पीछे डिजिटल मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, उसके लिए पीछे सोशल मीडिया एजेंट्स होते हैं, वो ये काम करते हैं. तो आप ये मत समझिए कि इनके पेज पे जितना भी कंटेंट है ये खुद बैठ के लिख रहे हैं. ऐसा नहीं है. पीछे इनके एजेंट्स हैं, दे आर पेड फॉर इट. और आप भी अगर कभी डिजिटल मार्केटिंग करना चाहें, सोशल मीडिया कंटेंट डेवलपमेंट करना चाहें, तो आपको भी पेमेंट मिलेगी इफ यू डू अ प्रॉपर कोर्स एंड गेट अ जॉब इन दैट एरिया. तो इन्होंने कॉन्स्टेंटली कंटेंट दिया, कॉन्स्टेंटली. एक बहुत फेमस रेसलर हैं जॉन सेना, उन्होंने इनकी पिक्चर पोस्ट की, इन्होंने वो पोस्ट भी डाली. तो आप बिलीव करिए, ये 4 महीने अंदर बैठे थे और कंटिन्यूअसली इनका कंटेंट 4 महीने बाहर बनता गया. इतना सॉलिड कंटेंट बन गया है कि इस वक्त अगर आप कीवर्ड की मैं बात करूं, कीवर्ड वो वर्ड जिसपे मैं सबसे पहले खुलता हूं. सो अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो आसिम इस वक्त डालने पे सबसे पहले इन महाशय का पेज खुलेगा. Okay, so that is the power of content and posting regularly. That is the power. Case study. Another thing, I'm coming back to my slide. Brand image कैसे बनाते हैं? Brand image social media पे कैसे बनाई जाती है? इसका example है ये post. How many of you know this episode? आप में से कितने लोग, मैं जरा chat पे देखूं, how many of you know कि ये episode क्या था? कितनों को पता है? हाँ, चैट आ गया, फटाफट चल रहा है, मतलब बहुत लोगों को पता है. आई नो, नो, यस. अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले किस्सा सुनाती हूँ कि ये था क्या. इट सो हैपेंड दैट जोमैटो ने एक ऑर्डर डिलीवर किया
पंडित अमित शुक्ल जी को, ठीक है। और पंडित अमित शुक्ल जी ने वो ऑर्डर लेने से मना कर दिया, फूड का ऑर्डर था, खाने का ऑर्डर था, उन्होंने लेने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि ये ऑर्डर जो है एक हिंदू, नॉन हिंदू राइडर लाया है। नॉन हिंदू राइडर यानी एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय था और उन्होंने ये पोस्ट जो है अपने ट्वीट पे, ट्विटर यूज किया उन्होंने और उन्होंने ये ट्वीट डाल दी कि आई वाज एलोकेटेड अ नॉन हिंदू राइडर एंड आई एम नॉट टेकिंग, आई हैव कैंसल द ऑर्डर, रिफंड मी। ठीक है, अब आप देखिए इनकी पोस्ट इतनी जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ऊपर एक लाइन देखिए, फूड डजंट हैव अ रिलीजन, इट इज अ रिलीजन। आप ये लाइन देखिए। और बाय द वे मैं आपको फिर रिमाइंड कर रही हूं, ये लाइन जोमैटो के सीईओ ने नहीं लिखी, ये लाइन जोमैटो के ब्रांड मैनेजर ने नहीं लिखी, ये डिजिटल मार्केटर ने लिखी है। वो एजेंसी जो इनका ट्विटर अकाउंट संभालती है, फेसबुक संभालती है, वहां कंटेंट के लिए लोग रखे होते हैं, उनको पेमेंट मिलती है। इट इज अ करियर ऑप्शन, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स, इट्स अ करियर ऑप्शन। आप सोचिए ये लाइन, एंड इससे जोमैटो की ब्रांड इमेज ऊपर चली गई और स्विगी वगैरह की नीचे गिर गई। सो दैट इज द पावर ऑफ हाउ यू कैन बिल्ड अ ब्रांड इमेज थ्रू कंटेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पे और क्या क्या होता है, लेट मी क्विकली गो बिकॉज आई एम एट 11:25 ऑलरेडी। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, social media for content promotion. For example, if I am trying to promote my content to readers and increase my subscribers, इसकी भी मेरे पास एक केस स्टडी है और वो केस स्टडी है ये लेडी। हमारी एज के लोगों को शायद ना पता हो, पर स्टूडेंट्स अगर ऑन बोर्ड हैं तो आई वुड लाइक यू टू टेल मी द नेम ऑफ दिस लेडी। So students who are listening to me, do you know the name of this lady? आपको इसका नाम पता है? कभी देखा है YouTube पे? No, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे आप इनसे। Okay, mostly I'm getting no. I think one person has said yes, rest have said no. Okay, ये एक लेडी है जिनका नाम है लिली सिंह। ठीक है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये YouTube पे 3rd नंबर पे आती हैं सब्सक्राइबर लिस्ट में। शी इज द 3rd, वर्ल्ड्स 3rd। आप, आई विल शो यू, यूट्यूबर्स जो होते हैं ये उनका डेटा है, वर्ल्ड का डेटा है। आप देखिए ये लेडी नंबर 3 पे, सुपर वुमन लिली सिंह, शी इज नंबर 3 ऑन द total YouTubers. Okay, someone is saying I know. Yes, yes, she is very famous YouTuber. Yes, somebody, many people know. Youngsters में बहुत famous है। और आप देखिए what is the content she has developed? What is the content she developed? She speaks about Indian parents and how they deal with children. ठीक है, तो ये कुछ फनी वीडियोस बनाती हैं। कुछ एक वीडियो तो इनकी मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगती है, बट हाँ, यंगस्टर्स में बहुत फेमस है, यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस है। अब coming back to my point, social media content promotion. This lady reached number 3 on YouTube subscribers. आसान नहीं है, दुनिया में जितने YouTubers हैं उसमें ये लेडी नंबर 3 में आती है। एक बड़ा ही फेमस इंग्लिश सॉन्ग निकला था मैरून 5 करके एल्बम में, जिसमें पूरे वर्ल्ड के टॉप 25 लेडीज थी, टॉप 25 लेडीज। आप सोचिए कि फॉरेनर्स में जितनी एलन और जेनिफर लोपेज, जो बड़े बड़े नाम हैं वो थे, और उनमें भी शी वाज फीचर्ड। ठीक है, तो आप इंटरनेट की पावर देखिए, आप यूट्यूब की पावर देखिए। आज ये लेडी बाय इटसेल्फ अ ब्रांड है, लेकिन मुझे ये कैसे फायदा देगा? मैं तो यूट्यूबर नहीं हूं, मैं तो एक ब्रांड हूं। सपोज करिए मैं लीवाइज हूं, मुझे ये कैसा फायदा देगा? दिस लेडी नाउ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर, ये बहुत स्ट्रांग हो गई है, ये मेरे ब्रांड को फर्दर प्रमोट कर सकती है, मुझे इससे ये फायदा निकालना है। अगेन, एज अ सीईओ ऑफ लीवाइज, आई विल नॉट गो टू दिस लेडी, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, मैं इसको कनेक्ट करेंगे मेरे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स या गूगल। ओके, नाउ there is one thing I have added in which is called curated links. सोशल मीडिया पे बहुत सारा curated links हैं, वो क्या होता है मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये एक बड़ी फेमस कंपनी है, इसका नाम है सैनडिस्क। आपने मोबाइल शॉप्स पे
इसका छोटा सा एक चिप देखा होगा। ये जो छोटा सा चिप है ये एक मेमोरी कार्ड होता है और ये मोबाइल में डलता है मेमोरी बढ़ाने के लिए, ठीक है। जनरली हम जब वेकेशन पे जाते हैं तो आजकल लोग बहुत बड़े बड़े कैमरे नहीं लेके जाते। ओके, एवरीबडी सेइंग यस, ओके, एवरीबडी सेइंग यस, यस। So when we go for a vacation, we don't take huge cameras nowadays. We just take our mobile, and in the mobile we install this memory chip so that the memory increases. Okay, now आप इस पे देखेंगे इन लोगों ने क्या करा, इनका ये इंस्टाग्राम पेज है। अब आप इस पे ध्यान से देखिए, ये जो फोटो लगी है ये इस कंपनी ने खींच के नहीं डाली है, ये फोटो है किसी फोटोग्राफर की जिनका नाम है फैबियन मैहोफोर, ठीक है। लेफ्ट साइड पे नीचे नाम लिखा है। अब ये कौन है, ये इनके एक कस्टमर हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, क्यूरेटेड कंटेंट, क्यूरेटेड लिंक वो होता है जो कंपनी ने खुद इंस्टाग्राम पे नहीं बनाया होता, वो कहीं दूसरी जगह से लेके आती है। वो दूसरी जगह कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कोई ओपिनियन लीडर हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है, लेकिन वो जो दूसरी जगह से कंटेंट आएगा उसको आपको नाम देना पड़ता है, ये यहां से आया। आप किसी और का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे यूज नहीं कर सकते, आपको बकायदा उसको क्रेडिट देना होता है। जैसे इन्होंने दिया, इन्होंने पिक्चर डाली तो है लेकिन इन्होंने बड़ी क्लियरली लिखा है कि फोटोग्राफ बाय फैबियन मैयरहोफर, ओके, मैयरहोफर। सो इन्होंने क्या करते हैं, ये अपने वो कस्टमर्स जिन्होंने सैनडिस्क यूज करके एक पिक्चर खींची, दे विल पुट द पिक्चर्स ऑन देयर इंस्टाग्राम पेज एंड दे विल गिव ड्यू क्रेडिट, they will give due credit to the photographer or the customer. So imagine this is not their content, this is curated content. Okay, this is curated content, but sometimes we have to use it. And mind you, I'm explaining you social media. You use curated content on your website, you use curated content on your mobile app, you use curated content on your other pages, formal pages, your blogs, bloggers use it. So curated content is there on all forms of media, all forms of digital marketing, not only on social media. I'm just giving you an example of social media today. Okay, next, let's go to next. I hope you've understood. Now, there is another thing called analytics in digital marketing. Generally we say analytics, okay, but analytics is not restricted to Google Analytics. Analytics केवल और केवल Google Analytics तक सीमित नहीं है। Analytics आपको हर सोशल मीडिया पेज पे एक एनालिटिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ फेसबुक के एनालिटिक्स का। फेसबुक के पेज पे जो एक एनालिटिकल टूल होता है उसका नाम होता है फेसबुक इनसाइट्स, लेकिन इससे आप केवल और केवल ये सारी चीजें जो स्लाइड में है देख सकते हो, लेकिन केवल अपने पेज के लिए, कॉम्पिटिटर के लिए नहीं देख सकते, ठीक है। तो फेसबुक इनसाइट क्या करेगा, आपको हर वीक आपके लाइक्स, आपके पेज व्यूज, एक्शन ऑन द पेज, क्या इंसान वहां 2 मिनट के लिए रहा और चला गया या उसने कुछ क्लिक भी किया, एक्शन ऑन पेज दिखाएगा, वीडियोस जो लाइक हुई वो दिखाएगा, कोई कमेंट है वो दिखाएगा, ठीक है। ये सारा एनालिटिक्स के थ्रू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फेसबुक इनसाइट्स वन ऑफ द टूल्स। इसी तरह के टूल हर सोशल मीडिया पे हैं। अगर आप वेबसाइट का एनालिटिक्स देखना चाहते हो, मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितनों ने लाइक किया, तो गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है। हर सोशल मीडिया पेज पे, मैं एक बार चैट देख लूं। ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा, तारीफें तो खैर मैं 12 बजे फिर से एक बार सुन लूंगी, बट ओके, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। सो फेसबुक इनसाइट्स जो एक चीज है, ये समझ लीजिए कि फेसबुक के अंदर का एक एनालिटिकल टूल है, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम का अपना टूल है, लिंक्डइन का अपना टूल है, ठीक है। कुछ फ्री है, कुछ पेड है, लेकिन आप इससे केवल और केवल अपने पेज का सब कुछ देख सकते हैं, दूसरे पेज का नहीं देख सकते। अब आप मुझे बताइए कि मुझे फायदा क्या हुआ? अगर मुझे अपने ही लाइक्स देखने हैं, अपने ही पेज लिंक्स देखने हैं, तो मुझे फायदा क्या हुआ? मुझे तो ये देखना था मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मुझे अपने पेज का क्या फायदा है? ओके,
मुझे अपने पेज का ये फायदा है, द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ फेसबुक इनसाइट एनालिटिक्स ऑफ माय पेजेस, आई कैन सी हाउ माय कंटेंट इज फेयरिंग. फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. Asim Riaz, everybody knows Asim Riaz. He made a Facebook page, okay, and he posted John Cena's post. John Cena जी ने उनकी एक फोटो पोस्ट की थी, उन्होंने वो पोस्ट कर दी. अब within a week he has to see कि क्या मेरे लाइक्स बढ़े और कितने बढ़े. ठीक है. इसी तरह मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था सैनडिस्क का, वो जो मेमोरी चिप बना रही थी, उसने एक फोटो पोस्ट की कस्टमर की, जैसे कि पीछे फोटो मैंने आपको दिखाई थी. फिर अगले हफ्ते देखा मेरे लाइक्स बढ़े कि नहीं बढ़े. ठीक है. तो आप केवल और केवल अपने एनालिटिक्स अपने पेज पे इस तरह देख सकते हो. दिस इज कॉल्ड एनालिटिक्स. एंड नाउ आई एम गोइंग टू सोशल मीडिया क्राइसिस मैनेजमेंट. सब कुछ अच्छा नहीं है सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, सब कुछ अच्छा नहीं होता कंपनी के लिए. कुछ बुरी चीजें भी आती हैं, और जो बुरी चीजें आती हैं उनका बकायदा एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट. बकायदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में एक सब्जेक्ट होता है ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट. हम उसको ORM कहते हैं. हमें वो क्यों चाहिए, मैं आपको एक केस स्टडी, फिर से हम एग्जांपल से ही पढ़ेंगे, केस स्टडी दिखा देती हूँ. ये एनालिटिक्स है, ये देखिए, ये एनालिटिक्स है. आप देखिए फेसबुक आपको दिखा रहा है कि आपके ब्रांड के मोस्ट लाइक्स यूएस से आ रहे हैं. मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था उस स्टूडेंट का, उसने यही एनालिटिक्स देखा और कहा कि अगर मुझे डिसेबल्ड लोगों के लिए कपड़े बनाने हैं तो मैं हिंदुस्तान में नहीं बेच सकता, क्योंकि मोस्टली मेरे लाइक कमेंट्स तो यूएस से आ रहे हैं. तो चलो बिजनेस वहां लेके चलते हैं. तो आप सोचिए एनालिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, मैनेजर्स के लिए. ठीक है. अब हम आते हैं, I'll come to this later. अब हम आते हैं एक केस स्टडी पे. आपको सबको स्लाइड नजर आ रही है? अगर आप में से किसी को, if any of you know what this controversy was, just write, if just say I know. Okay. This is visible, ma'am. Yeah, it is visible. Okay. Yeah. हाँ. कुछ लोग चैट में डाल रहे हैं कि yes, they know the controversy. Okay, Shivani says she knows. Khushi, Damanpreet, yes, I know. Okay, yes, okay. Okay, somebody's also asking how much time it will take. I'll finish by 12. Okay, so this was a controversy which happened. H&M ने अपनी वेबसाइट पे ये एक हुडी बेची. उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी. उन्होंने एक ब्लैक बॉय को ये ग्रीन कलर का कार्डिगन या स्वेट शर्ट हम कहते हैं, ये पहनाया, और इस स्वेट शर्ट के ऊपर लिखा था कूलेस्ट मंकी. इस स्वेट शर्ट के ऊपर लिखा था कूलेस्ट मंकी. H&M के खिलाफ सब ब्लैक लोगों ने केसेस कर दिए. उन्होंने उनका सारा मर्चेंटाइज जोहानिसबर्ग में उनके सारे शोरूम तोड़ दिए. और रीजन क्या था? उन्होंने कहा आपने एक ब्लैक लड़के को भेदभाव करा. You have done racism. You have named this black boy as the coolest monkey, and this is purposely done to demarcate a race, the black race. Okay, so there was a lot of controversy over this. And then what did H&M do? Forget ki kahani kya thi, kya hua. What did H&M do? H&M used digital marketing to apologize formally. H&M ने फॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे उन सब लोगों से अपॉलॉजी मांगी, एंड दैट इज व्हेन इनके शोरूम, स्पेशली साउथ अफ्रीका के सारे शोरूम तोड़ दिए थे उन्होंने. दैट इज व्हेन देयर शोरूम स्टार्टेड अगेन. सो दिस इज समथिंग वी कॉल्ड वायरल. ठीक है. वायरल अच्छा भी है और बुरा भी है. वैसे कोरोना के केस में तो बहुत ही बुरा है खैर, लेकिन वायरल जब कोई इंफॉर्मेशन हो जाती है तो वो अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है. जो हमारे ब्रांड में, जैसे वो जोमेटो वाला एग्जांपल था, वो वायरल हो जाए हमारे लिए बहुत अच्छा है. हमारी ब्रांड इमेज बढ़ जाती है. लेकिन ऐसा अगर कोई एग्जांपल वायरल हो जाए तो हमें एक दूसरी चीज चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. ठीक है. उसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको सिर्फ टच अपॉन कर देती हूँ. उसमें व्हाट वी डू इज, इफ वी कैन,
पता नहीं कई वेबसाइट्स पे नहीं हो सकता. इफ वी कैन, वी डिलीट ऑल द नेगेटिव पोस्ट. देखिए, जब तक वो नेगेटिव पोस्ट दिखती रहेगी आपका ब्रांड खराब होता रहेगा. एक एपिसोड हो गया ये वाला, अब हो गया तो हो गया, हो गया तो हो गया. द प्रॉब्लम इज वो सोशल मीडिया पे काफी टाइम तक रहेगा. तो व्हाट शुड यू बी डूइंग? यू शुड बी डिलीटिंग द नेगेटिव पोस्ट. एंड एक एग्जीक्यूटिव बैठा होता है गुड़गांव में, ठीक है, एक पॉइंट पे बैठा होता है और वो आपकी वेबसाइट को कुछ 17,000 18,000 पॉजिटिव पोस्ट से भर देता है. अब जब कंज्यूमर आपकी वेबसाइट पे आएगा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएगा, उसको क्या दिखेगा? उसको ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स दिखेंगे और नेगेटिव नहीं दिखेंगे. और ये सारी कंपनियां करती हैं. आप इसको एथिकल बोलो, अनएथिकल बोलो, ये सब कंपनियां करती हैं. इसके लिए एग्जीक्यूटिव्स को पे किया जाता है, ठीक है. एंड इट इज लीगल, इट इज लीगल, बाय द वे इट इज लीगल, ठीक है. ओके, दो और चीजें मुझे आपके साथ करनी है. बड़े कॉमन टर्म्स आते हैं जो मुझे आपको समझाने हैं. नंबर 1 इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ये एक बकायदा पूरा सब्जेक्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग में. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स if I am a faculty and there are thousands of faculty in management, the moment a person types Dr. Jaspreet Kaur Pearl Academy, or even not Pearl Academy, Dr. Jaspreet Kaur on Google, I should show among the first 5 searches. ठीक है. अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के सेमिनार्स में बोलती हूँ. कल भी एक मैं FTP ले रही थी तो मैंने स्टूडेंट्स को बताया. इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू वांट टू हाइड अ डेड बॉडी, हाइड इट ऑन द सेकंड पेज ऑफ गूगल. आई रिपीट, इफ यू वांट टू हाइड अ डेड बॉडी, हाइड इट ऑन द सेकंड पेज ऑफ गूगल. क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर कोई डेड बॉडी हाइड करनी है, सेकंड पेज पे हाइड कर दो, क्योंकि सेकंड पेज पे कभी कोई नहीं जाता. गूगल के सेकंड पेज पे कभी कोई नहीं जाता. कल मैं जिनके साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रही थी रिसर्च का, मैंने बच्चों को बताया, मैंने कहा गूगल स्कॉलर पे जाओगे तो सेकंड पेज पे तक कोई नहीं जाता. अगर डेड बॉडी हाइड करनी है वहीं हाइड कर देना, वहां भी कोई नहीं जाता. सो दिस मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टॉप में शो करें. अब टॉप में कैसे शो करें? नंबर 1, कीवर्ड. ठीक है, आपको हैरानी होगी सुन के कि कीवर्ड गूगल से खरीदा जाता है. ठीक है, तो अगर मैं पर्ल एकेडमी हूं, मैंने 2-3 कीवर्ड खरीदे हुए हैं. बेस्ट फैशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, बेस्ट फैशन इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली, बेस्ट फैशन इंस्टीट्यूट. ये 3 कीवर्ड मैंने खरीदे हुए हैं. खरीदते कैसे हैं? आप एक बिडिंग करते हैं, एक ऑक्शन करते हैं गूगल के साथ. आप कहते हैं जब जब ये कीवर्ड आएगा तुम मुझे ऊपर लिस्ट करोगे, मैं आपको $1 दूंगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं बिडिंग, इसको हम कहते हैं नेगोशिएशन, ऑक्शनिंग. अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि मैम आप एक लौते इंस्टीट्यूट थोड़ी ना हो मैनेजमेंट के, ऐसे तो सारे दे देंगे $1-1. विवेक ग्रुप $2 दे देगा, ठीक है, IIM $3 दे देगा, कोई और $6 दे देगा. ऐसे तो फिर ऐसे कैसे होगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट पे नहीं होता. गूगल के और पैरामीटर्स हैं. वो पैरामीटर्स क्या हैं? नंबर 1, $1 जो सबने देने हैं, इसीलिए उसको पेड सर्च भी बोला जाता है, पेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बोला जाता है. प्लस गूगल क्या करेगा? गूगल एक देखिए इंटरनेट क्या है आप समझ लीजिए, एक स्पाइडर है. मकड़ी सब लोग समझते हैं ना, एक स्पाइडर है. और वो ना जैसे स्पाइडर दीवार पे पूरा क्रॉल करता रहता है ना, पूरे घर में क्रॉल करता रहता है, वैसे ही जो इंटरनेट का क्रॉलर होता है वो पूरे इंटरनेट को क्रॉल करता है और कंटेंट देखता है. अब सपोज करिए एक कॉलेज है, मैं आपको आप ही के कॉलेज, विवेक कॉलेज के हिसाब से समझा देती हूँ. सपोज करिए मैंने डाला बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन यूपी, सपोज करिए. ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं विवेक कॉलेज टॉप पे आए. ठीक है, तो हमें कई चीजें करनी पड़ेंगी. एक, गूगल के साथ वो कीवर्ड खरीदना पड़ेगा. आई विल हैव टू बाय द कीवर्ड फ्रॉम गूगल. And what should be the keyword I buy? It should be best colleges in UP, or best management colleges in UP, or best postgraduate courses in UP. I will have to buy these keywords from Google. How much? $1. Number 1. Number 2, I have to see when the Google crawler starts searching,
वो देखता है पॉजिटिव कितने लोगों ने बोला है, नंबर 1, और कितने लोगों ने बोला है, कहीं ऐसा तो नहीं इस कॉलेज के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कमेंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ कमेंट्स वो उसको लिस्ट कर लेगा। तो अब ये क्रॉलर पूरा घूमा, उसने देखा, आप बिलीव करिए ये जो एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है और वो जो फटाक से एक सर्च आ जाता है उसमें क्रॉलर देखो कितनी स्पीड से घूमता होगा, 1 सेकंड लगता है सर्च इंजन पे सर्च, आप सोचिए कितनी तेज घूमता होगा। तो वो क्रॉलर घूमता है और वो देखता है अच्छा विवेक कॉलेज, अच्छा इसके बारे में तो यूपी में बहुत लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स हैं इसके, बहुत कोर्सेज हैं इसके, बहुत बात चल रही है इसकी, नंबर 1। नंबर 2, वो बात पॉजिटिव चल रही है कि नहीं, पॉजिटिव रिव्यूज आर लिस्टेड एज हाई क्वालिटी बाय गूगल। आई रिपीट, positive reviews are listed as high quality for Google, and if your brand is of high quality, you will be listed among the top 5 search. I repeat, if you are of good quality, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, अगर मैं कहूँ क्वालिटी अच्छी मतलब क्या, बहुत लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और अच्छी बात कर रहे हैं, कमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो आप टॉप में आ जाओगे। अब मुझे बताइए कि अगर मैं एक होटल हूँ, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, तो मेरे ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा नहीं है कि मैंने गूगल को $5 दिए हैं, इसलिए नहीं है, दिए मैंने $1 ही है, पेड ही सर्च है मेरी, लेकिन जितने लोग ताज के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, ताज के बारे में जो अच्छी बात कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए गूगल ने क्रॉल करा, उसने कहा यार ये कोई, गूगल को कुछ नहीं पता, सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं पता होता, सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं पता होता, सॉफ्टवेयर नंबर्स पे चलता है। उसने कहा अच्छा इसके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं, इसको ऊपर ले जाओ। दैट इज द रीजन व्हेन यू टाइप बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस ऊपर IIM आता है। दैट इज द रीजन व्हेन यू टाइप बेस्ट फैशन कॉलेजेस तो निफ्ट और पर्ल आता है। दैट इज द रीजन। इट इज नॉट बिकॉज वी आर पेइंग, इट इज बिकॉज वी आर ऑफ गुड क्वालिटी। सो दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यही लॉजिक गूगल पे लगता है, यही लॉजिक मोबाइल पे लगता है, यही लॉजिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस पे भी आप कीवर्ड डाल रहे हो सब पे यही लॉजिक लगता है। नाउ लास्ट थिंग आई हैव टू डू विच इज, क्योंकि मुझे 10 मिनट क्वेश्चन के लिए भी देने हैं, ऐसा सर्वेश सर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, तो मुझे जल्दी खत्म करना होगा। पे पर क्लिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ना ये कॉन्सेप्ट कोई भी किताब पढ़ोगे ना डिजिटल मार्केटिंग के, ये आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पे पर क्लिक, सिंपल हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं, जैसे ही मैं क्लिक करूं मुझे पैसे मिल जाए। पे पर क्लिक, जैसे ही मैं क्लिक करूं मुझे पैसे मिल जाए। अब ये एक बड़ी डेंजरस चीज है। आप देखिए फेसबुक पे ये जो रेड में आपको नजर आ रही है, ये मेरी एड है, दिस इज माई एड। आई विल क्लिक ऑन दिस, दिस इज एन एड ऑफ से ताज होटल्स, ओके। आई एम अ कंज्यूमर, दिस इज माई फेसबुक पेज, दिस इज जसप्रीत कौर's फेसबुक पेज, and there is this ad of Taj, and it is reflecting like a pop-up, and I get lured. I said यार ताज, अभी तो अब कोरोना खुलेगा तो एकदम से ताज ही जाएंगे, फटाफट क्लिक करके देख लेते हैं रेट क्या चल रहे हैं। and I click, the moment I click this ad, okay, Google AdWord dominance है Google की डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में। एक्चुअली Google AdWord will charge $1 to whom? Google AdWord will charge $1 to whom? Taj Hotels. Okay, so Google AdWord का काम क्या है, हमारा काम क्या है? Google AdWord को पे करना और बोलना जहां जहां आपको स्लॉट मिले मेरी एड डाल दो। तो Google AdWord क्या करेगा? फेसबुक से स्लॉट खरीद लेगा, किसी ब्लॉगर की वेबसाइट से स्लॉट खरीद लेगा, किसी यूट्यूबर के पेज से स्लॉट खरीद लेगा और मेरी एड वहां डाल देगा। लेकिन the moment I click it, whether from Facebook, whether from a blogger, whether from a website, Google will charge Taj Hotels $1. Thus the name pay per click. अब इसमें कैच ये है कि आप ताज पे जाके रूम बुक कराओ ना कराओ, पेमेंट कराओ ना कराओ, वो गूगल आपको चार्ज कर लेगा। अब ये चार्ज किसका दिया मैंने? मेरी वेबसाइट तक कस्टमर को लाने का, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं गूगल एडवर्ड में जाके पैसे देती हूँ और उसको बोलती हूँ कि ताज की एड भेज देना, वो टारगेटिंग करता है, वो हर जगह ताज की एड नहीं भेजता। मैं उसको समझाती हूँ
कि देखो यार ये मेरा इनकम क्लास है, मैं दिल्ली, मुंबई, फलान ढिमकान इस जगह मेरा मेजर कस्टमर है, गुड़गांव मेरा बहुत बड़ा एरिया है कस्टमर्स का। तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इन ब्लॉगर्स को या वो लोग जो सिर्फ इन जगहों से कस्टमर मिलेगा सिर्फ उस जगह मेरी एड प्लेस करेगा, क्योंकि हर $1 के लिए मुझे उसको पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पे पर क्लिक। सो आई एम एंडिंग हियर। इट्स एग्जैक्टली I have covered everything that yes, social media में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक हो गया, क्यूरेटेड मार्केटिंग हो गया, बड़ी टेक्निकल चीजें आपने 1 घंटे में सीख ली हैं। इतनी जल्दी हम सिखाते नहीं हैं, बट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड आई थॉट आई गिव यू मैक्सिमम वैल्यू। आपको यहाँ आके सिर्फ ये बताना कि फेसबुक की वेबसाइट्स कौन सी हैं वो तो यंग बच्चों को वैसे ही पता होता है, और आई थिंक यू नो, आई होप इट मस्ट हैव एडेड वैल्यू। एंड नाउ इफ सर्वेश सर अलाउज वी कैन ओपन इट फॉर क्वेश्चंस ऑन द चैट। श्योर मैम। हाँ जी, ओके, सो आई विल, ओके, वेरी मच सर। Yeah, Afsha ma'am, please. Yes, ma'am. Ma'am, sorry to interrupt you in between. Yeah. Trust me, I can vote with a complete assurance that now you are one of the best or one of my favorite speaker. Trust me that. I think the session was so commendable and it was truly informative. And you basically focus on current issues. हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं ना अब अपना YouTube का एक चैनल बनाने वाली हूँ। मुझे इतनी तारीफ मिल गई ना, तो बस अब लिली सिंह के बाद आप मेरा नाम ही देखेंगे। Ma'am, you deserve all such compliments. Really, the session was beyond expectation. So I can truly vote that you are one of my favorite speaker now. Thank you. Okay, ma'am, we have few queries for you. Shall I start that? Yes, please, ma'am. Please. Okay, ma'am. The first one is, why are you focusing on apps of other countries? Why you aren't focusing on Indian app? The first Indian question. app? Yeah. Which Indian? See, Facebook is a global thing. I can't bring it Indian Facebook. There is no website called Indian Facebook. Twitter is an international thing. I can't say Indian Twitter. Okay, I might have taken examples from abroad just to explain you. But by the way, SanDisk is a brand which is very much in India. आसिम तो ब्रांड ही आप लोगों ने बनाया है। आसिम को तो बाहर कोई जानता भी नहीं, जॉन सिन्हा के अलावा। I mean, मैं अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि जॉन सिन्हा का पोस्ट है, आसिम को बाहर कोई नहीं जानता। ये सब इंडियन ब्रांड्स ही हैं आपके, ठीक है? हाँ जी, और क्वेश्चन मैम? Yes, ma'am. Ma'am, is there any research that show that youngsters are found only on Instagram? The question is of Afaq Hussain. Yes, sir. Yes, there are articles which quote that. There are research papers which quote that. मैं कोई भी बात स्लाइड पे बिना रिसर्च, मैं पीछे मेरा बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग के साथ रिसर्च ज्यादा है, तो मैं बिना रिसर्च के कोट नहीं करती। आप फोर्ब्स मैगजीन के आर्टिकल्स देखिए 2020 के, दे विल टेल यू इंस्टाग्राम इज फॉर यंगस्टर्स। मैं आपको एक बड़ा एक सिंपल सा इसको एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको हाँ, वो बात मैं बताना भी भूल गई। इट सो हैपेंड, मैं ग्रेजुएशन की एक क्लास में घुसी और मैं एक बड़ा टेक्निकल टॉपिक पढ़ा रही थी, कंज्यूमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, और मैंने अभी स्लाइड डाली भी नहीं और सारे बच्चे कहते हैं मैम वो फलान सर मनाली घूमने गए हैं ना। मैंने कहा मुझे तो बता के नहीं गए, आपको कैसे पता है? मैम उनकी स्टोरी चेंज हो गई। मैंने कहा क्या चेंज हो गई? मैडम उनकी स्टोरी चेंज हो गई। मैंने कहा स्टोरी चेंज हो गई, कहाँ चेंज हो गई? बोले मैम इंस्टाग्राम हर 24 आवर्स में स्टोरी चेंज होती है। एंड I was like, I hope you can hear. If you can't hear me, just tell me. Afsha ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. Yeah, I can hear you. वो I can hear you, वीडियो ma'am. रुक गई थी तो मुझे लगा, तो मैंने उससे पूछा ये स्टोरी कहाँ मिली? बोले मैम हर 24 आवर्स बाद ना स्टोरी चेंज होती है। तो मैंने कहा फिर बेटा एक काम करो, देखो मैं हर चीज को ना मार्केटर की तरह देखती हूँ, इसलिए मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा बेटा मुझे भी स्टोरी दिखा दो, मुझे तो नहीं पता मनाली गए। मैम नहीं वो अपनी वाइफ के साथ गए हैं, फलां सारी इन्फॉर्मेशन उनको। तो मैंने कहा मुझे दिखा दो। बोले मैम स्टोरी तो खत्म हो गई। मैंने कहा खत्म हो गई मतलब? मैम वो तो 24 आवर्स बाद खत्म हो जाती है। मैंने कहा इसका मतलब है तुम्हारे अगर 200 फ्रेंड्स हैं, तुम 200 फ्रेंड्स की रोज स्टोरियां देखते हो? कहते हैं हाँ मैम। देखिए आप एज अ मार्केटर ब्लेस्ड हैं, अगर आपके पास इतनी वेले कंज्यूमर हैं जो हर दिन स्टोरी देख रहे हैं, तो यू एज अ मार्केटर इन इंडिया यू आर ब्लेस्ड। आप रोज फोटोएं डालें, वो रोज देखेंगे।
So this is what I wanted to explain. 24 hours में लोग स्टोरी व्यू करते हैं. आप देखिए लोगों के पास कितना टाइम है और कितना उनको जुनून है सोशल मीडिया का, कि वो फैकल्टी अभी गया भी नहीं, उनको पता है कहाँ गए, कैसे गए, किधर गए, किसके साथ गए. ठीक है. हाँ जी. Next question. Ma'am, next question is, which field of digital marketing is excellent? No, all fields are excellent, ma'am. Let me tell you, the major fields are mobile apps, mobile marketing on apps. ठीक है, this is a different subject. Search engine optimization, generally done by Google keywords. This is a separate field. Social media marketing is a separate field by itself. Okay, social media marketing, social media search. अच्छा, एनालिटिक्स में हर तरह का एनालिटिक्स आता है. गूगल एनालिटिक्स आता है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स आता है. एनालिटिक्स एक डिफरेंट फील्ड है. उसके अलावा वेब डिजाइनिंग, ये आईटी रिलेटेड है. पीछे मेरा कोड क्या बनेगा, मेटा टैग्स कैसे डलेंगे, मैं कैसे कुछ वर्ड्स अपनी वेबसाइट में डालूं ताकि गूगल से ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ जाए. टेक्निकल, आईटी, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये मेजर फील्ड्स है मैम डिजिटल मार्केटिंग. Shall I come on the next question, ma'am? Yes, ma'am. Yes. The next question is how a retail seller should cover his sales in competition of social media marketing. मैम यू विल हैव टू, मेरी एक स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको बताया था पोस्ट रेगुलरली. देखिए, अगर आप एक रिटेलर हैं और आप सोशल मीडिया पे हैं तो व्हाट्सएप का तो कोई फायदा नहीं. आप जैसे ही ग्रुप बनाएंगे लोग वॉकआउट कर देंगे. मैं भी वॉकआउट कर देती हूँ. लेकिन अगर मैं बाई चांस समझिए कि एक लोकल मार्केट है यहाँ रजौरी गार्डन जिसमें एक रिटेलर है और मैं उनके पास जाती थी, सपोज करिए मैं पुरानी कस्टमर रही हूँ, तो मैं उनके पोस्ट हमेशा चेक करती रहूंगी. तो उनका जो भी नया मर्चेंटाइज है वो पोस्ट में डालते रहे और जितने लोग उसको लाइक करते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम में सपोज करिए मैं एक चीज को लाइक करती हूँ तो मेरे सारे 200 फ्रेंड्स को दिख जाता है कि मैंने लाइक कर दिया. तो आप सोचिए अगर मैं एक पोस्ट लाइक करूंगी तो 200 लोगों को पता चल जाएगा कि ये गारमेंट, नया गारमेंट दुकान पर पहुंच गया है. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन मैम. The next question is of Aman Sharma. He want to know that how a new startup can invest on this social media to promote because we have less budget in starting. अच्छा, पहले तो आई वुड सजेस्ट आप एक वेबसाइट बना लो. वेबसाइट आजकल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आई थिंक डेली 1500 to 2000 में बेसिक वेबसाइट बन जाती है. ठीक है, थोड़ा और. एंड डू नॉट गो फॉर मोबाइल ऐप. मोबाइल ऐप बहुत महंगे आते हैं. मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख रुपए मोबाइल ऐप बनाने में लगता है. इनिशियली हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे. आप पहले तो वेबसाइट बनाइए. देखिए सर, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें, ब्लॉगर पे डालें, यूट्यूबर पे डालें, रोज होके वो लिंक आना तो आपकी वेबसाइट पे ही है. तो सबसे पहले तो वेबसाइट बनाइए. ठीक है, उस वेबसाइट का लिंक आप सोशल मीडिया पे देखिए. फेसबुक पेज बनाना फ्री है, इंस्टाग्राम पेज बनाना फ्री है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने फ्री हैं. तो पहले जो फ्री वाली चीजें हैं उनको स्टार्ट करिए. अगर कंटेंट अच्छा रहेगा, आप देखिए मैं खुद आसिम रियाज को फेवर नहीं करती. मतलब मुझे, मैम आपको बता रही, जब वो आया था मुझे लगा था भैया तुम हो कौन, मतलब तुम बिग बॉस में हो क्यों, और तुम हो तो फिर तो मैं भी हो सकती हूँ. मुझे ऐसी फीलिंग आई थी वेरी फ्रैंकली. बट आप देखिए कंटेंट के बेसिस पे 4 महीने में वो कहाँ है. तो वो भी तो नया ही आया था सर, था तो वो भी नया प्रोडक्ट ही, उसको कोई नहीं जानता था. तो फ्री चीजें यूज की उसने. अभी तो पेड में आप बेशक मत जाइए. वेबसाइट बनाइए, सोशल मीडिया पेजेस बनाइए अपने वेबसाइट पे. Okay. ठीक है मैम. Yes, ma'am. Ma'am, the next question is, during this pandemic, online delivery is not allowed. So why are you focusing on digital? No, online delivery is allowed. Who says it's not allowed? No, Amazon is delivering online. There are websites. Big Bazaar is delivering online. I am not going outside for wet ration. Wet ration यानी जो milk, eggs वगैरह होते हैं, इसके लिए अगर आप बाहर जाओगे तो आप उस पर्सन के कांटेक्ट में आओगे. वो जो आपको करेंसी वापस करेगा वो पता नहीं कितने हाथों ने टच करी होगी. तो आई एम ऑर्डरिंग ऑल माई वेट राशन थ्रू वेबसाइट. वो अंडे, ब्रेड, दूध रोज का वो दे के जाता है. क्यों नहीं? एक फोन, हाँ, गेट के अंदर नहीं आने दे रहे, वो तो गेट पे छोड़ के जाते हैं सारा सामान. ऑनलाइन डिलीवरी इज ऑन. हु सेज इट्स नॉट ऑन? इट्स ऑन, इट्स ऑन. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The next query is of Fiza Hasnain. The best way to enhance our brand. Best way to enhance your brand is content.
कंटेंट मैम, जस्ट इमेजिन वो जोमेटो का जो आंसर था, क्या कमाल आंसर था। कंटेंट होगा, लोग आएंगे। अगर कल को मैं भी अपना यूट्यूब चैनल, सपोज करिए मैं जसप्रीत हूँ, मैं एक ब्रांड थी जो आप लोगों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। अब मैं जब अपना यूट्यूब शुरू करूंगी तो आप लोग क्यों इतने कमेंट्स लिख रहे हैं बेस्ट सेशन? इट्स माय कंटेंट, इट इज दैट कंटेंट व्हिच आई हैव गिवन यू इन द पीपीटी। ठीक है, आप मुझे कितना जानते हैं? आप जानते हैं कि मैं कोई आईआईएम में पढ़ाती हूँ या आईआईटी में पढ़ाती हूँ? मैं ब्रांड हुई नहीं, मैं तो आई एम नॉट अ ब्रांड एट ऑल। इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट कि जो थोड़े बहुत लोग जानते हैं, सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे जानते हैं। अदरवाइज आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आईआईएम और आईआईटी। ठीक है मैम? Yes, ma'am. The next question is, which is very suitable social media for life insurance marketing? Life insurance marketing, again, Yes. as I said, make web pages, do a good targeting. See, life insurance young बच्चे तो खरीदेंगे नहीं, तो इंस्टाग्राम पे जाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, लिंक्डइन बड़ा ही प्रोफेशनल वेबसाइट है जहां आपको एडल्ट्स मिलेंगे। आपको गूगल प्लस पे लिस्ट करवा लीजिए, और एक आप फेसबुक पे भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे हमारी एज के या थोड़े ओल्डर जो लाइफ इंश्योरेंस में बिलीव करते हैं। और ट्विटर पे मत जाइए, ट्विटर और इंस्टाग्राम बेसिकली यंगस्टर्स के लिए है। और टिकटॉक पे तो बिल्कुल मत जाइए, बदनाम हो जाएंगे, मुझे लगता है ब्रांड ही बदनाम हो जाएगा। Okay. The next question is. Afsha ma'am. Yes. I think that Okay. the time is about to over, and Okay, it's sir. approx 12 o'clock. If Okay. somebody has some query, so he can mail it, and definitely ma'am will answer it. So please shorten the floor. Ma'am, you handled all the queries Yeah, so nicely. And again, I would like to compliment you. You are the best, one of the best speaker. And now I would like to request our respected head of department, Dr. Savesh Kumar Sheetal, to deliver the vote of thanks. Thank you so much. And one thing I would like to apologize for, the first 10 minutes, the network connection, there was some problem. I don't know, I'm on the same net since the past 1 hour, but I don't know what happened in 10 minutes. It's really okay, ma'am. The participants had enjoyed your lecture a lot, and I can see the compliments in the chat box. I mean, the nice session, the wonderful session, so many compliments are there. So it was really a very, truly interactive session. Thank you. So, I'm looking forward Okay, to more. thank you. Yes, yes, sir. Please deliver. Yeah. Gratitude is one of the least articulate of the emotions, especially when it is deep. On the behalf of entire Vivek family, I would like to extend a heartfelt thanks to our guest speaker, Dr. Jaspreet Kaur. We thank you wholeheartedly as you have graced us by accepting our invitation in a very short period. I'm sure that the lecture has influenced everyone very effectively. Madam, as you made us understand all the related to social media marketing in a very effective and simplified manner. Madam, you also highlighted the power of social media marketing to meet the competition in today's business environment for the professionals. Madam, to be very honest, this was really very informative and knowledgeable lecture. Overall, it was a wonderful lecture. We hope that in coming future, we will continue to take the advantage from your expertise and knowledge. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Signing off. You've been a lovely audience. Thank you so much, sir. Looking forward to more of these. Thank you and goodbye. Definitely. God bless. Take care. Definitely, ma'am. Take care. Definitely. Okay. We are also thankful to our visionary college management, Chairman Honorable Sri Amit Goyal sir, Secretary Honorable Sri Deepak Mittal sir, Treasurer Honorable Sri Dharmendra Agrawal sir, as your presence inspire us to do something constructive. We are also thankful to you for providing us the concrete support. We have our sincere gratitude to our Director Administration, respected Dr. O.P. Gupta sir, for your valuable guidance. We are very thankful to all the principals and HODs for sparing us their precious time. We are thankful to Dr. Hitesh Sharma sir, coordinator of the Vivek College, for his valuable support. I also convey my special thanks to Engineer Anu Sharma for his technical support at every level it needed. I'm very thankful to Team DVS, who collectively worked hard to make this webinar so grand. At the last, but not at the least,
we are very, very thankful to all the participants who attended this webinar so patiently. So these kind words, we move to end today's webinar. Thank you very much.